Very good morning, students. Welcome to Gyanmanji Vidyapeeth Mahua online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So आज हम लोग केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 यानी कि डे 6 के अंदर अभी हम आ गए. सो लेट्स स्टार्ट डे 6. सो बिफोर दी स्टार्ट सबसे पहले हम डे 6 स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस जो डे 5 के अंदर जो कुछ भी हमने डिस्कशन किया था उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द previous day. So let's start it. So here, as per the previous discussion, let's solve some practice question in your supplementary book. So please open your supplementary book, page number 4, SB4, practice question number 3.1. Question is that, what is the primary characteristic of plastic as a material? Plastic की primary characteristic as a material क्या है? So answer is that plastics are strong, durable, lightweight and non-reactive. So वो रिएक्शन नहीं करेगा किसी भी केमिकल के साथ, ज़्यादातर रिएक्शन नहीं करता है. सो इट इज़ अ नॉन रिएक्टिव. Then next practice question number 3.2 on your SB page number 4. What is the difference between the polymer structures of the synthetic fibers and the plastic? So in the synthetic fibers, the polymer structure is linear, where in plastics, the polymer structures can be linear or cross linked. So हमको मालूम है क्रॉस लिंकेड किस तरह से होता है और लीनियरली स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था. Then after, next one is that, as per your NCERT exercise, so please open your NCERT book if you do not have the book, so don't worry, you can solve directly in your screen. So first of all, question number 3 on your page number 41 NCERT book. Question is that, fill in the blanks with appropriate words. So यहाँ पे C जो blank है उसके बारे में है. Like synthetic fibers, plastic is also a polymer. यहाँ पे आएगा polymer. Next question is that, same it is NCERT exercise question number 11 on your page number 41 in NCERT books. The question is that, should the handle and bristles of the toothbrush be made up of the same material? Explain your answer. No, the handle and bristles of the toothbrush should not be made up of same material, because of our gums are soft, so the bristles should be made up of soft material, whereas the handle is the toothbrush should be made up of hard material, so give it firm grip. સો જો બ્રશ હોય છે તો બ્રશના જે એની ઉપરના જે ભાગેથી આપણે બ્રશ કરીએ છીએ, જે આપણા દાંત સાફ કરીએ છીએ, ટીथ हम क्लीन कर रहे हैं, तो वो जो पोर्शन है, तो हमारा जो मुंह के अंदर जो हमारे गम्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. सो दैट्स वाई इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स. एंड जो हैंडल यानी कि ग्रीप, जो બ્રશનું હેન્ડલ હોય છે એ ગ્રીપ સરખી રીતે પકડાઈ શકે એવું હોવું જોઈએ. સો ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ હાર્ડ મટીરિयल. સો ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन regarding to previous unit, previous lecture. So now it's time to solve practice question number 4.1 on your supplementary book page number 7. Fill in the following table. आपकी supplementary book SB7 पर एक टेबल इस तरह से दिखाया है. So properties of plastics और corresponding uses, ये आपको लिखना है. Plastic does not react with water and air. Plastic is strong, light and durable. And corresponding use के अंदर, it is used to make the outer convergence of many electric applications. It is also used to make handles and untils. So जो blank है वो हमको फिलअप करनी है. मैंने यहाँ पे फिलअप करके आपको दिखा दिया है. So picking a drinking water, kitchen storage, containers, etc. Plastic is strong, light and durable. So it is used in the making of the furniture like chair, desk and show racks. Okay. Then C, it is a bad conductor of heat and electricity. Next, practice question number 4.5.
plastic is strong, light and durable. Can you think of two applications where these qualities are useful? कहाँ पे ये use हो सकती है? Yes, plastic is strong, light and durable, so it can be used to make furniture like chair, desk, shoes, racks, etc. To make kitchen storage boxes. ये मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, तो आप सब भी सभी क्वेश्चन के आंसर एज होमवर्क आप सबको लिखना है, तो आप सभी को ये एज होमवर्क अपनी फेयरबुक के अंदर डायरेक्टली लिख दो और उसके फोटोग्राफ क्लिक करके एज होमवर्क सेंड करना है. नाउ properties of plastics. So does not react with water and air. First properties क्या है? वो पानी है और हवा के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगी, हमको मालूम है, इट इज ए नॉन रिएक्टिव. So plastic does not react with the water and air, hence it is used to store food and chemicals. So फूड और केमिकल को स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है. आप यहाँ पे फिगर के अंदर देख सकते हो, फूड को प्रिजर्वेटिव के अंदर रखने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए. देन आफ्टर गम की बोतल है, टेबलेट्स की बोतल है, केमिकल्स की बोतल है, जो मेडिसिन की ट्यूब्स होती है वो ज़्यादातर प्लास्टिक की होती है, तो उसको बनाने के लिए इसका यूज होता है बिकॉज इट इज़ ए नॉन रिएक्टिव. Next properties does not get corroded. So plastic does not get corroded, hence can be used to make pipes, plumbing, accessories, etc. उस पर काट नहीं लगता है. ओके, सो इसकी वजह से उसका यूज पाइपिंग और प्लम्बिंग काम के अंदर ज़्यादातर होता है. हमारे घर के अंदर सभी पानी की पाइप्स ज़्यादातर होती है वो प्लास्टिक से बनी होती है. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी काफ़ी सारे, हमारे घर के अंदर स्कूल ले लो, वहाँ पे भी जो लाइट की इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स बिछाते हैं उसके अंदर भी प्लास्टिक्स के पाइप्स यूज होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज दैट लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. So plastic is light, strong and durable, hence it can be used to instead of the metals, clay, etc. Then it is a poor conductor of heat. वो हीट को नहीं कंजर्व कर सकता, so that's why it is a poor conductor of heat. So handles of the कुकिंग के जो कुछ भी मटेरियल्स है उसके हैंडल्स है, लाइक फ्राइंग पैंस, प्रेशर कुकर्स, आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स. हमने ज़्यादातर देखा है सभी के जो हैंडल्स है वो ज़्यादा प्लास्टिक से बने होते हैं. आप घर पे भी देख सकते हो, कुकर है, देन फ्राइंग पैंस है, तो वो लकड़े का होगा या फिर प्लास्टिक का होगा. सो एज पर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट यानी कि जो गर्मी नहीं पकड़ता उससे वो बना होता है. नेक्स्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं होने नहीं दे सकता. हमको मालूम है इट इज इंसुलेटर. सो द आउटर कवरिंग ऑफ द वायर्स लाइक केबल्स, इलेक्ट्रिक स्विच एंड द शॉर्ट sockets are made up of the plastics as a poor conductor of electricity. ज़्यादातर आप देख सकते हो सभी चीज़ प्लास्टिक से बनी होती है बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती है. सो इट इज़ इंसुलेटर. सो दैट्स वाई हम कई कबार बाई चांस उसको हम छू ले तो हमको शॉक नहीं लगता है. सो वी आर मेड अवर सेफ साइड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी. सो ये उसकी हमने प्रॉपर्टीज देखी है. सो नाउ नेक्स्ट के टॉपिक पर हम चाहते हैं. यस, नाउ द टॉपिक इज दैट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक की दो तरह के टाइप्स होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी विथस्टैंड हीट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक और सेकंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. आप यहाँ पे फिगर के ऊपर देख सकते हो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये दोनों चीज़ प्लास्टिक से ही बनी है. आप यहाँ पे देखते हो पॉलीथीन है और ये कुछ प्लास्टिक की क्रॉकरीज है. तो ये दोनों चीज़ के अंदर दोनों प्लास्टिक्स की है, बट मेजर डिफरेंस क्या है वो आप बताओगे कोई? यस, सो मेजर डिफरेंस इज दैट कि जो थर्मोसेटिंग है वो ब्रेक जल्दी से नहीं होगा और उसके अंदर चेंज भी जल्दी से नहीं आ सकता
कंपेयर टू थर्मोप्लास्टिक। ओके, अभी क्या है वो डिटेल जा रहे हैं। फर्स्ट, थर्मोप्लास्टिक, plastic that can be deformed or bent easily as known as a thermoplastic। वो क्या होगा, उसको हम डिफॉर्म यानी कि उसके अलग फॉर्म के अंदर भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बैंड कर सकते हैं इजीली। सो इट इज नोन एज thermoplastics। they can be melt on heating and can be remodulated any numbers of times। हम उसको जितनी बार चाहे इतनी बार उसको रीमोड्यूलेट यानी कि उसमें से उसको गर्म करके उसको मेल्ट करने के बाद उसको हम अलग अलग शेप यानी कि जितनी बार यूज करना है उसको हम कर सकते हैं। किस प्रकार के प्लास्टिक को? सो फर्स्ट टाइप थर्मोप्लास्टिक को। देन convention of thermoplastics, the thermoplastics have a linear or lightly cross-linked polymer structure। उसके पास जो थर्मोप्लास्टिक्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर और लाइटली क्रॉस लिंक्ड। ये हमको मालूम है क्रॉस लिंक्ड और लीनियर स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जो हमने पिछली बार देख लिया था। नेक्स्ट, अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। पीईटी बॉटल्स। पीईटी क्या होता है? जो हमने लास्ट टाइम देखा था पीईटी, आपको याद होगा। आपको जिसको याद है वो जब होमवर्क आप करो तो पीईटी का फुल फॉर्म लिखकर आप बताना, जो आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आई होप आप सबको किसने किसने किया है वो मुझे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, पॉलीथीन बैग एंड पीवीसी पाइप। सो दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये सभी चीज़ थर्मोप्लास्टिक। पानी की बोतल है, जो ज़्यादातर पॉलीथीन बैग है जो हम सामान कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं। पीवीसी पाइप, गार्डनिंग के वक्त पानी देने के लिए हम जो पाइप का यूज़ करते हैं वो सारे पाइप पीवीसी पाइप्स होते हैं। नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी थर्मोसेटिंग की बात करें तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि हमारी जो प्लास्टिक की स्केल होती है, ओके, और प्लास्टिक की बोतल है, स्केल होती है, बोतल होती है, हम आप आगे एग्जांपल देखेंगे, वो सारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर रहेगा। सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दोज दैट कैन नाइदर बी डिफॉर्म्ड और नॉट बैंड इजीली। उसको हम डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे और उसको बैंड भी नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा बैंड करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। प्लास्टिक की स्केल को आपने बैंड किया होगा और काफ़ी सारी स्केल आपने तोड़ी भी होगी। ओके, सो ये हमारे लिए काफ़ी इजी और पॉपुलर एग्जाम्पल रहेगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किस तरह से होता है। सो उसको हम ज़्यादा बैंड करें तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। थोड़ा बहुत बैंड हो सकता है बट प्रॉपरली उसको बैंड करेंगे तो नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। So they break when they are a force or forced to bend, जो मैंने अभी बात की। Once molded, they are permanently set and cannot be remodulated into any other shape। एक बार अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर शेप में एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बना दिए यानी कि मैंने स्केल बना दी, तो ये पूरे टाइम तक स्केल ही रहेंगे, उसको हम रीमॉड्यूलेट नहीं कर पाएंगे। जबकि थर्मो थर्मोप्लास्टिक होगा उसको हम रीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग को रीमॉड्यूलेट नहीं कर सकते। सो ऐसा क्या होता है उसके अंदर को जिसको वजह से उसको हम रीमॉड्यूलेट नहीं कर सकते? सो बिकॉज ऑफ दे हैव हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर स्ट्रक्चर। ओके, उसके अंदर हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर स्ट्रक्चर रहेंगे। सो दैट्स व्हाई उसके अंदर ज़्यादा उसको हम बैंड नहीं कर सकते और उसको रीमॉड्यूलेट नहीं कर सकते। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ द thermosettings। So crockeries, microwave safe containers, handles of cookware। आप देख सकते हो क्रॉकरीज है, माइक्रोवेव यानी कि ओवन के अंदर जो हम प्लास्टिक्स के जो कुछ भी कंटेनर्स रखते हैं वो सारी चीज़ जो होती है वो किससे बनी होती है? तो यहाँ पे भी थर्मो सेटिंग प्लास्टिक आएगा। यहाँ पे ऊपर थर्मो प्लास्टिक जो लिखा है वहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक है। सो ये एग्जांपल्स है थर्मो सेटिंग के। देन हैंडल ऑफ कुकवेयर, ज़्यादातर जो कुकिंग के अंदर जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है जो कुकिंग बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं, जो कुकवेयर होते हैं वो सारे के हैंडल्स
जो जिससे बने होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं। सो नाउ थर्मोप्लास्टिक्स वर्सेस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ये दोनों का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसकी तो क्या आएगा, तो क्या मिल रहा है हमको। सो दे आर डिफॉर्म बैंड इजीली ऑन ब्रिंग being heated. They can be heated to melt into the liquid and remodulate to a set of any numbers of time. आप कभी भी कोई पॉलीथीन यानी कि कोई प्लास्टिक की बैग को आप गर्म करें तो क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। पिघल जाने के बाद आप किसी भी फॉर्म के अंदर, किसी भी शेप के अंदर उसको रख के थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा कर दोगे तो बाद में वो पर्टिकुलर शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, thermosetting plastics, they are not deformed and bend easily and they remain in permanent solid state on being a set once, hence they are cannot be remodulated. Next, in thermoplastics, compose in a linear and lightly cross-linked polymers, और यहाँ पे it is a highly cross-linked polymers. Next example in thermoplastics, the examples of thermoplastics is are plastics bags, water bottle, and the thermosettings examples are handles of cooking ware, switches, हमारे इलेक्ट्रिक स्विच, घर के अंदर हम फैन ऑन ऑफ करते हैं, टीवी ऑन ऑफ करते हैं, मोबाइल के चार्जर ऑन ऑफ करते हैं, तो ये सारी स्विच जो है वो किससे बनी होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी होती है। सो अभी आप सबको ये मालूम हो गया है कि हमारे पास दो टाइप्स के प्लास्टिक्स होते हैं। तो अभी आप सबको मालूम हो गया कि आप घर पे अभी पॉलीथीन की बैग है तो जल्दी से मम्मी को बोलो कि मम्मी ये थर्मोप्लास्टिक होती है। ये प्लास्टिक कौन से टाइप का होता है, थर्मोप्लास्टिक। स्विच दिखाओ, तो ये क्या होती है, ये थर्मोसेटिंग होती है। हमारी स्केल है, थर्मोसेटिंग होती है। ओके, सो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो भी आप अपने घर वालों के साथ शेयर करो और साइंस को एंजॉय करो। So now it is time to solve practice question number 4.3 on your SB page number 7. So please open your practice question number 4.3 on SB page number 7. Will you use thermoplastic or thermosetting plastic to make a placemat for hot utils? So I used thermosetting plastic to make placement of the hot as it is a heat resistance, so it does not deform or bend or being heated. ये आंसर आपको लिखना है। Now the last question is question number 4.4 on your SB page number 7. Should you pour hot tea in a PET bottle? Give a reason to support your answer. No, hot tea should not be poured in a PET bottle as it is made up of thermoplastics. So thermoplastic can be easily deformed on being exposed to heat. Okay, अभी आपके साथ लास्ट में यहाँ तक अभी हम रखने वाले हैं। सो अभी आपको एक थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में शॉर्टली इन लोकल लैंग्वेज बता दूँ। સો થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક એટલે શું થાય કે થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક જે કાંઈ હોય છે એને તમે જલ્દીથી ઓગળી શકે, બરાબર। સપોઝ ફોર એન એક્ઝામ્પલ કે પ્લાસ્ટિકની નાની થેલી છે, એને આપણે ગરમ કરીએ તો શું થશે, ઓગળી જશે, બરાબર। એ ઓગળી જાય અને એને આપણે કોઈ પણ એક ડીશની અંદર રાખી દઈશું, બરાબર। ડીશની અંદર એને ઓગાળીએ એટલે એ લિક્વિડ ફોર્મની અંદર ઓગળીને એમાં પડ્યું રહેશે। પછી ડીશની અંદર એને એવી રીતે વ્યવસ્થિત એની અંદર આમ પાથરી દઈએ અને પછી એને ઠંડુ પડવા દઈશું, એટલે શું થશે, ટેમ્પરેચર એનું ડિક્રીઝ થશે એટલે ઓટોમેટિકલી આપણને જે શેપની અંદર પ્લાસ્ટિકનું લિક્વિડ પતરાયેલું છે એ શેપમાં એ બની જશે। તો આની કહેવાય રીમોડ્યુલેટ। ઓકે, સો આ વસ્તુ જેમાં થાય એવા જે કંઈ પ્લાસ્ટિક છે એને શું કહેવાય, થર્મોપ્લાસ્ટિક। અને બીજી વસ્તુ જેની ઉપર હીટની અસર જલ્દીથી નથી થતી, બરાબર, એવી જે કંઈ વસ્તુ છે જે હીટને જલ્દીથી નથી થતી એની ઉપર, એને ગરમ કરતાં વાર લાગે, જલ્દીથી ના ઓગળે, તો એવા જે કંઈ પ્લાસ્ટિક છે એને શું કહેવાય, થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક્સ। થર્મોસેટિંગની અંદર આપણે વાત કરી સ્કેલની, સ્કેલને તમે સ્કેલ અને પ્લાસ્ટિકની નાની થેલી એ બેયને તમે ગરમ કરો એકસાથે તો પહેલાં કોણ ઓગળશે, પ્લાસ્ટિકની થેલી, કેમ કે એ થર્મોસેટિંગ છે, ઓલામાં વાર લાગશે। શું કામ, કેમ કે એ જે આખું સ્ટ્રક્ચર છે એ હાઈલી ક્રોસ લિંકેડ સ્ટ્રક્ચરનું બનેલું છે। સો ધેટ્સ વાય આ બેની એક મેજર ડિફરન્સ છે। ઓકે, સો આઈ હોપ
आप सबको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। सो अभी हम यहाँ तक रखेंगे। सो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। एंजॉय द साइंस, फन विद साइंस। इफ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी। और सभी क्वेश्चन आंसर जो वीडियो के अंदर सॉल्व कराए, सारे क्वेश्चन आंसर आप सभी को लिखकर सेंड करने होंगे। नेक्स्ट टाइम आई विल मीट ऑन योर न्यू टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।